Hello students, welcome to yet another video of chapter number 6, triangles. Students, today we are going to discuss a very important theorem, and that is the basic proportionality theorem. This theorem is also known as Thales theorem, named after the great mathematician Thales, who gave us the proof of this theorem. So here we begin basic proportionality theorem, also known as BPT. Theorem 6.1 of your textbook, standard 10th. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. So students, we are given a line which is drawn parallel to one side of triangle. Let us assume the one side is BC and this is the line, name it as a DE. So this line DE is parallel to BC. So if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, मतलब ये जो line है ना DE, ये AB को और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. स्टूडेंट्स, ये डीई बनाने के बाद ये जो एबी है ना, इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं, एडी एंड डीबी. एडी डीबी और डीई एसी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एई एंड ईसी. करेक्ट. सो इट इज रिटन कि अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो डीई एबी और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. इसका मतलब एडी अपॉन डीबी, इसका जो रेशियो है एडी अपॉन डीबी का, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू एई अपॉन ईसी. ठीक है. तो इस सम में व्हाट इज गिवन इन ट्राइंगल एबीसी, डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई इंटरसेक्ट्स एबी एंड एसी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली. और हमें प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी equal to AE upon EC. So this is our data and this is what we have to prove. Now students, to begin with, इसके proof के लिए सबसे पहले हम लोग join करते हैं BE को. Join BE and let us join CD. Join BE and join CD. Let us make DM perpendicular to AC. And let's make EN perpendicular to AB. So remember that पहले हमने BE और CD को join किया है और CN perpendicular to AB and DM perpendicular to AC. This is how we have to start our proof. Right students? Now let's go further. Now please look at triangle ADE. ADE. अब ट्राइंगल ADE के अंदर दो परपेंडिकुलर हैं, एक है EN और एक है DM. आई रिपीट, वन इज EN, अदर इज DM. ये दोनों परपेंडिकुलर. सो आउट ऑफ दिस टू आपको कोई एक सिलेक्ट करना है. से फॉर एग्जाम्पल हमने EN सिलेक्ट किया, EN, एंड लेट अस फाइंड आउट what will be the area of triangle ADE. Now in your lower classes, that is 9th standard, you have studied that area of triangle is equal to half into base into height. अब हमने ना height मतलब perpendicular EN को select किया है. EN is the perpendicular, so half into perpendicular into base. base क्या है? AD. Students, आपको है ना ध्यान सिर्फ ट्राइंगल ADE पे रखना है. सो हाफ इंटू EN. अब चेक करो EN का बेस क्या है. सो EN का बेस है AD. इज दैट क्लियर? नाउ सिमिलरली प्लीज फोकस ऑन ट्राइंगल DBE. विच ट्राइंगल? DBE. अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल DBE है, इसके अंदर कोई परपेंडिकुलर है? ट्राइंगल DBE के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट अंदर. देखो दो परपेंडिकुलर्स थे हमारे EN और DM. तो कोई भी परपेंडिकुलर ट्राइंगल DBE के अंदर है? सो द आंसर इज नो. तो ऐसे केस में हम कैसे इसकी एरिया निकालें?
तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, इट इज नॉट नेसेसरी कि परपेंडिकुलर हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही हो। देखो, अगर आप BD को एक्सटेंड करो, अगर आप BD को आगे ले जाओ तो क्या वो EN को टच कर रहा है? प्लीज चेक। BD को आगे एक्सटेंड करो तो क्या वो EN को टच कर रहा है? द आंसर इज यस। इट मीन्स दैट हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। स्टूडेंट्स, हमने किसको एक्सटेंड किया? BD को। तो BD हमारा बेस है और वो किसको टच कर रहा है? कौन से परपेंडिकुलर को? EN को। क्लियर? अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN. Half cancel, EN cancel. What remains with me? AD upon BD. Let's give this as equation number 1. Correct, students? Now see, when we started, I told you triangle ADE के अंदर दो perpendiculars हैं. You select any one. Yes, you remember that? So we started with perpendicular EN, right? पहले हमने EN लिया था, अब हम DM लेते हैं, मिस्टर DM, राइट? तो अभी DM परपेंडिकुलर है। सो लेट्स बिगिन। अगेन लेट्स फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू, अब हमने परपेंडिकुलर लिया है DM। अब चेक करो प्लीज कि DM का बेस क्या है। जस्ट ट्राइंगल ADE पे ही फोकस करना। तो DM का बेस होगा AE। प्लीज चेक, DM कौन सी साइड पे है? AE। सो हाफ इंटू DM इंटू AE। ये किसकी एरिया हो गई? ट्राइंगल ADE। अब स्टूडेंट्स देखो, ट्राइंगल ADE की एरिया पहले भी ली थी, लेकिन तब परपेंडिकुलर EN लिया था इस तरफ, और ट्राइंगल भी हमने इस तरफ वाला सिलेक्ट किया था। देखो DBE, इस तरफ वाला। अब हमने परपेंडिकुलर दिस साइड लिया है, मेरे राइट हैंड साइड DM, तो मैं ट्राइंगल भी राइट हैंड साइड सिलेक्ट करूंगा DEC। जिस तरफ परपेंडिकुलर हो ना, उसी तरफ ट्राइंगल सिलेक्ट करने का, DEC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू हाफ इंटू, अब प्लीज चेक करो, ये जो आपका ट्राइंगल DEC है, इसके अंदर तो कोई परपेंडिकुलर है ही नहीं, लेकिन अगर मैं CE को एक्सटेंड करूंगा, इफ आई एक्सटेंड CE, तो वो DM को टच कर रहा है। प्लीज चेक। सो आई विल राइट लाइक दिस, हाफ इंटू किसको एक्सटेंड किया? CE को, और किसको टच कर रहा है? कौन से परपेंडिकुलर को? DM। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। लेट अस डिवाइड दिस टू। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू हाफ इंटू DM इंटू AE अपॉन हाफ इंटू CE इंटू DM। हाफ कैंसिल, DM कैंसिल, so what remains? AE upon CE, equation number 2. Is it okay, students? Now equation 1 और equation 2 दोनों के LHS पे फोकस करिए। मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं, दोनों के LHS पे फोकस करिए। देखिए, यहाँ न्यूमरेटर में है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो, आर दे इक्वल? नो। यहाँ हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और यहाँ हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स पे फोकस कर रहा हूँ, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC। पहले दोनों का मैं नाम लिख देता हूँ। सो ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्राइंगल में कुछ खास बात है, मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। ओके, प्लीज पे अटेंशन।
ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल डी ई सी। अब ये जो दो ट्राइंगल्स है ना, एक ऐसी कॉमन साइड है जो दोनों ट्राइंगल में है, डी बी ई में भी है, डी बी ई में भी है और डी ई सी में भी है। ऐसी कौन सी साइड है? कैन यू फाइंड आउट विच साइड इज कॉमन बिटवीन बोथ? यस, द कॉमन साइड इज डीई। करेक्ट, विच इज द कॉमन साइड? डीई। अब जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि ट्राइंगल डीबीई, ट्राइंगल डीबीई, ये डीई और बीसी, ये जो दो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं? डीबीई। इट इज बिटवीन डीई एंड बीसी। इज इट करेक्ट? और जो ट्राइंगल डीईसी है ना, ये भी डीई और बीसी के बीच में। सो ट्राइंगल डीबीई एंड ट्राइंगल डीईसी, दे बोथ हैव अ कॉमन बेस, और वो कॉमन बेस है डीई, कॉमन साइड है डीई, एंड दे लाई बिटवीन two parallel lines, and lie between two parallel lines. Now which are those parallel lines? DE and BC. They lie between two parallel lines DE and BC. Now in standard 9th we have studied, if two triangles have a common base and they lie between two parallel lines, then both the triangles have same area. इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। सो ये मैंने लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। लेट्स गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 1, 2 and 3, लेट्स सी कैन वी कंक्लूड समथिंग फ्रॉम 1, 2 and 3। स्टूडेंट्स फिर से इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट साइड देखिए, न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर सेम। Are the denominators same now? Yes. According to equation number 3, area of BDE and area of DEC are equal. Area of BDE, area of DEC, ये दोनों equal है, तो दोनों का denominator equal है, दोनों का numerator भी equal है। मतलब equation 1 और equation 2 दोनों का left side equal है, और जब दोनों का left side equal है तो obviously दोनों का right side भी equal होगा। So from 1, 2 and 3 we conclude that AD upon BD equal to AE upon CE. So from 1, 2 and 3, AD upon BD is equal to AE upon EC. So students, here we complete this basic proportionality theorem, one of the most important theorem for standard 10th board exams. So do prepare this theorem very well and keep your concepts clear. Practice writing this theorem at least twice or thrice. If you still have any doubts, I am always there for them. Okay? Thank you and have a nice day.